Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our second textbook, that is supplementary reader of our English subject. The name of the book is Footprints Without Feet, okay, and we will start reading with our chapter number 1. The name of the chapter is A Triumph of Surgery, okay. So what is triumph? Triumph means victory, okay, and surgery means a place where doctors they treat their patients, okay, and this chapter is written by Mr. James Herriot. He is the writer of this chapter, okay. So as it is clear from the title, A Triumph of Surgery, so in this chapter we will read about one doctor, okay, and we will read that how he he treated his patient, and it is very obvious from the title that he was very successful in his treatment because he actually got victory, okay, he actually got a triumph, okay. So this was the triumph of surgery, okay. We will know all the answers when we will continue the chapter, when we will read the story. So let's begin. Before you read, so before starting reading the story, let's get some idea about the background of the story, that what the story is all about. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. So first character of our story is Tricky, and who is Tricky? Tricky is a small dog, okay, and this dog is pampered and overfed by his rich mistress. Mistress means इसकी जो owner थी, right? So the owner of Tricky was very rich, और उसकी जो owner थी वो उसको बहुत ज़्यादा pamper किया करती थी और उसे overfed किया करती थी, right? So what is pamper? Pamper means जब हम किसी को extra attention, extra comfort, एक्स्ट्रा लग्जरी देते हैं, ओके, इतनी ज़्यादा कि वो पर्सन स्पॉइल हो जाता है, ओके. आपने भी सुना होगा किसी बच्चे के लिए हम यूज़ करते हैं कि दिस इज़ पैम्पर्ड चाइल्ड, राइट, यानी कि उसके पेरेंट्स उसको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं. इन द सिमिलर मैनर जो ट्रिकी डॉग था, इसको भी इसकी जो ऑनर थी एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा कंफर्ट दिया करती थी, इतना ज़्यादा कि बिकॉज ऑफ द कंफर्ट, बिकॉज ऑफ द लव, वो उसको ओवरफेड किया करती थी. ओवरफेड मीन्स जितनी उसको फूड की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा फूड वो उसको दिया करती थी, ओके. शी फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, ओके. सो बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा फूड, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही फॉल सीरियसली इल एंड देन हिज मिस्ट्रेस शी कंसल्टेड ए वेटरनरी सर्जन, राइट. व्हाट इज वेटरनरी? वेटरनरी मीन्स अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स, ओके. जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेटरनरी. सो वो जो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है जब ये डॉग Tricky, so because of that his mistress consulted with one veterinary doctor. Does he perform an operation? Does the dog recover? Now the question is कि जब वो सर्जन के पास ही केस जाता है, जब डॉक्टर इस केस को हैंडल करते हैं, सो उनकी ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या था? क्या वो इसका एक कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी करते हैं, और ये जो डॉग है क्या ये फाइनली रिकवर कर पाता है? क्या फाइनली इसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव हो पाती है, ओके. सो वी विल फाइंड all the answers in our story. I was really worried about Tricky this time, okay. So the narrator is saying that he was really worried when he saw Tricky this time, okay. So what was the reason why he was so worried? He is explaining, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance, okay. So the narrator is saying then when he saw Tricky with his mistress, और उन्होंने कहाँ देखा था Tricky को? In the street, okay. So जैसे उन्होंने street में ट्रिकी को देखा along with his mistress, and at that time the narrator was in his car, so he pulled up his car. Pulled up means उन्होंने अपनी कार को साइड में लगा दिया, कार को रोक दिया, because he was so shocked. और क्यों shocked थे वो? At his appearance. Appearance means looks, okay. So जो appearance थी ट्रिकी की, ट्रिकी जैसा दिख रहा था, so उसको देख के ही जो narrator थे he was so shocked कि जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो he just stopped his car, okay. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. And what was his appearance? जिसको देख के narrator इतना worried हो जाते हैं, so वो कैसा लग रहा था? He was looking very hugely fat, okay. वो बहुत ज़्यादा fat हो चुका था, like a bloated sausage. और वो कैसा लग रहा था? He was looking like a bloated sausage. Sausage here we can see this is a dish, okay. This is a non-veg dish. So वो इतना fat हो चुका था कि वो इस तरह का उसका जो पूरी
उसकी बॉडी थी वो इस तरह लग रही थी, एक सॉसेज जैसा वो लग रहा था। और क्या लग रहा था, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और बस ऐसा लग रहा था कि हर कॉर्नर पे बस उसके पैर हैं, बस उसके छोटे छोटे से पैर दिखाई दे रहे थे। एंड हिज एंटायर बॉडी वॉज लुकिंग लाइक वन ब्लॉटेड सॉसेज। ओके, सो बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग ही वॉज नाउ ह्यूजली फैट। ओके, his eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Okay, and apart from his body, और क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ थी जिसको देखकर नरेटर इतने शॉक्ड हो गए थे। सो ही इज सेइंग दैट हिज आईज bloodshot, उसकी जो आईज थी वो कैसी लग रही थी, they were bloodshot means it means they were red. Okay, and rheumy, and they were rheumy means watery, rheumy is watery, so उसकी आईज में से थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा था। and his eyes were totally red. Okay, stared straight ahead, and with the help of those eyes, those watery and red eyes, he was staring straight. Okay, and his tongue lolled from his jaws. Okay, और उसकी जो टंग थी that was lolling from his jaws. Okay, इस तरह से here we can see जो टंग थी उसकी वो इस तरह के उसके jaws से बाहर की तरफ वो हैंग हो रही थी। सो इस तरह से उसकी appearance थी। This was his look, और उसके उस लुक को देखकर the narrator was so worried, he was so shocked. Okay, Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. Okay, अब जो उसकी मिस्ट्रेस हैं, जो ऑनर है उस डॉग की, उनका क्या नाम है, द नेम ऑफ द ऑनर इज मिसेस पम्फ्रे। ओके, सो जब मिसेस पम्फ्रे ने नरेटर को देखा और उन्होंने देखा कि जो नरेटर है ही इज ऑब्जर्विंग द डॉग सो मच। ओके, सो वो उन्होंने क्या किया, शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड शी हेसेंड। ओके, हेसेंड मीन्स टू बी क्विक। ओके, so she quickly explained that why he is looking so fat. Okay, so what did she say, she said that he was so listless, Mr. Harriet. Mr. Harriet is the name of our narrator, the writer. Okay, so she addressed Mr. Harriet, and next she said that he was so listless. Listless means lack of energy, or we can say lack of enthusiasm. Okay, so she said that her dog was having no energy, no enthusiasm. He seemed to have no energy. Okay, so she said that ये इतना ज़्यादा डल हो गया है, ये इस तरह से चल रहा है, इतना वीक हो गया है, इतना डल हो गया है, as if he is having no energy, he is having no enthusiasm. Okay, I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Okay, next she said कि वो इतना ज़्यादा वीक, इतना ज़्यादा डल हो गया था, उसमें कोई एनर्जी, कुछ एंथुजियाज्म नहीं था। So because of that she thought that he must be suffering from malnutrition. Malnutrition means lack of nutrition. Okay, so जब उसने उसकी ऑनर ने देखा, मिस्ट्रेस ने देखा, मिसेस पम्फ्री ने देखा that her dog is her having no energy, no enthusiasm, so उनको लगा that he is suffering from malnutrition. It is possible that he is not having any nutrition. Okay, so उन्होंने क्या किया, she gave him some extras between meals to build him up. जो meals होते हैं, यानी कि every day हम normally 3 meal लेते हैं, right, breakfast, lunch and dinner. Okay, so वो 3 proper meal तो वो दे ही रही थी, and between meals, okay, उन्होंने क्या start किया, she was giving some extra food. Okay, and why, to build him up, ताकि उसमें थोड़ी सी एनर्जी आए, ताकि उसके थोड़े मसल्स बिल्डअप हो, ताकि उसमें फिर से एंथुजियाज्म और एनर्जी लेवल उसका इंक्रीज हो जाए। सम मॉल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। एंड व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा फूड दैट शी वाज गिविंग बिटवीन मील्स, देन उन्होंने क्या कहा, दैट शी वाज गिविंग सम मॉल्ट। ओके, सो मॉल्ट हियर वी कैन से दिस इज अ ग्रेन, सो शी वाज गिविंग सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड इज अ फिश, हियर वी कैन सी दिस इज अ कॉड फिश, और इसका जो लिवर होता है और इसका जो ऑयल होता है, सो ऐसा माना जाता है, इट इज़ कंसिडर टू बी फुल ऑफ एनर्जी। ओके, सो वो कॉड फिश का जो ऑयल था वो दिया करती थी। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। ओके, और रात के समय अब बॉल ऑफ हॉर्लिक्स भी दिया करती थी टू मेक हिम स्लीप, सो डैट जो उनका डॉग है वो प्रॉपरली एक अच्छी सी साउंड स्लीप ले पाए। ओके, नथिंग मच रियरली। आफ्टर दैट शी एडेड दैट शी वॉज नॉट गिविंग मच। ओके, इतना ही था जो वो एक्स्ट्रा के में दे रही थी। शी वॉज गिविंग सम मॉल्ट, सम कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, नथिंग एल्स। ओके,
एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. सो आफ्टर हियरिंग दैट जो नरेटर थे ही वॉज सो शॉक्ड कि वो उसको इतना ज़्यादा फैट हो गया था, वो इतना ज़्यादा ह्यूजली फैट लग रहा था कि उसे प्रॉपर वे में चला भी नहीं जा रहा था और उसकी अपीयरेंस इतनी अजीब हो गई थी. फिर भी जो उसकी ऑनर है वो उसको एक्स्ट्रा फूड दिए जा रही थी. ओके, सो ये उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था. सो ही आस्क्ड दैट डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. सो ये बात उन्होंने पहले भी एक बार डिस्कस की थी. एंड इन दैट डिस्कशन जो नरेटर थे ही आस्क्ड द ऑनर मिसिस पम्फ्रेज टू कट डाउन द स्वीट थिंग्स. राइट, उन्होंने कहा था कि इसको खाने में ज़्यादा स्वीट थिंग्स मत देना. सो ही इज़ आस्किंग कि जो मैंने आपसे कहा था क्या वो कर रहे हो, क्या आप इसके फूड में से स्वीट थिंग्स को कम कर रहे हो. Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. Okay, so ये इसका रिप्लाई देते हुए मिसेस पम्फ्रे ने कहा कि oh, I did for a bit. She is saying कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ टाइम के लिए इसका जो स्वीट इनटेक है कुछ कंट्रोल किया था, but he seemed to be so weak. लेकिन उनको लगा कि वो स्वीट इनटेक कम करने की वजह से जो डॉग है वो इतना वीक हो गया था, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी. That she had to relent. Okay, relent means stop a harsh attitude. So she is saying कि in the beginning I tried to stop sweet things from his meal, but after that I noticed that he was so weak that I had to relent. I had to stop my harsh behavior. Okay, he does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. Next she said that जो उनका डॉग है इसको एक्चुअल में जो क्रीम केक्स होते हैं एंड चॉकलेट्स, here we can see cream cakes and chocolates and all these foods are full of calories. Okay, so she is saying that जो उनका डॉग है उसको क्रीम केक चॉकलेट्स ये सब इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं that she can't bear to refuse him, that she can't deny him. राइट, यानी कि वो अपने डॉग को इतना पैम्पर करती हैं, राइट, इतना एक्स्ट्रा लव एक्स्ट्रा केयर देती हैं कि ये देखते हुए भी कि ये सब चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, स्टिल शी वॉज गिविंग ऑल द स्वीट थिंग्स एंड इन फैक्ट एक्स्ट्रा फूड टू हिम. ओके, I looked down again at the little dog. Now narrator is saying कि जब उनकी ऑनर ने सारी बातें बता दी और स्पेशली जो खाने में वो क्या क्या दे रही हैं आजकल वो बता दिया. So now one more time narrator looked down at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. Now he is saying that what was the fault of Tricky the dog. He was having one fault and that fault was that he was very greedy. उसका जो greed था this was his only fault. Okay, he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. Okay, so खाने को लेके he was having some kind of greediness. Okay, he was very greedy और इसीलिए वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं करता था, चाहे उसने अभी अभी खाना खाया है, राइट, उसके बाद भी अगर उसके सामने कोई फूड आ जाता था सो वो कभी भी उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाता था, कभी भी उसको डिनाई नहीं कर पाता था. एंड ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. ओके, टैकल मीन्स टू डील विथ, राइट. सो उसको दिन में या और रात में किसी भी टाइम आप उसको फूड दे दो, किसी भी टाइम आप उसको कुछ स्वीट दे दो, राइट, कुछ मॉल्ट दे दो, हॉर्लिक्स दे दो, किसी भी टाइम दे दो, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू कंज्यूम, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हैव दैट फूड. ओके, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन. नेक्स्ट नाइटर कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें थी कि दैट शी वॉज गिविंग सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, राइट, ये तो एक्स्ट्रा वो चीज़ें थी जो मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन कर दी थी, बता दी थी, राइट. सो नाउ राइटर इज सेइंग कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन नहीं की थी, राइट, यानी कि राइटर को डाउट है कि अपार्ट फ्रॉम दीज फूड शी वॉज गिविंग मच मोर टू ईट, राइट. उनको लग रहा है कि इसके अलावा भी वो और भी खूब सारे फूड आइटम है जो कि वो अपने डॉग को दे देती हैं बिकॉज ऑफ दैट लव, राइट. Are you giving him plenty of exercise? Now the narrator is having next question. He is asking that are you giving him plenty of exercise? वो कह रहे हैं कि इतना सारा फूड तो आप इसको दे रहे हो बट क्या आप इससे एक्सरसाइज करवा रहे हो? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So इसका आंसर देते हुए Mrs. Pumphrey is saying that well, he has his little walks with me as you
कैन सी, ओके। सो एज ऑफ एक्सरसाइज वो सिर्फ क्या कर रहा था, जो ट्रिकी डॉग था वो एक्सरसाइज के लिए क्या कर रहा था, ही वॉज हैविंग ओनली लिटिल वॉक्स, ओके, विथ मी एज यू कैन सी। सो मिसेस पम्फ्रे इज सेइंग दैट यस ही इज हैविंग हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin is the gardener, okay, so he has been down with lumbago. Lumbago means pain in lower back, okay. So जो gardener था he was suffering from pain, okay, in his lower back. So because of that जो gardener था वो भी आ नहीं रहा था अपनी ड्यूटी पे. So there has been no ring throwing lately. Ring throwing is a game we can see here. जो अपने घर पे pets रखते हैं, right? So जो pets रखते हैं, स्पेशली जो dogs रखते हैं, so dog को डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराना, उनको वॉक पे ले जाना, उनके साथ में प्ले करना, राइट, ये सब उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके। सो ये भी एक गेम होता है रिंग थ्रो का। आप रिंग थ्रो करते हो, डॉग्स उनको कैच करते हैं, ला के देते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर गेम अमंग द डॉग्स, अमंग द पेट्स। सो ये जो गेम था, ये गेम जो ट्रिकी था वो गार्डनर के साथ खेला करता था, ओके। ही यूज्ड टू प्ले दिस गेम विद अ गार्डनर, बट नाउ बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू गार्डनर जो था वो आ नहीं रहा था। सो इसलिए ये जो गेम था ये भी उसका नहीं हो पा रहा था, ये एक्टिविटी भी वो मिस कर रहा था, स्किप कर रहा था। I try to sound civil. So now Night is saying जब उनको सारी बातें पता चली कि ट्रिकी एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, ओनली वॉक्स पे जा रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम डैट ही वॉज कंज्यूमिंग सो मच फूड, ओके। सो ये सुन के जो नाइटर थे वो सच में बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं ट्रिकी की हेल्थ को लेके, इसीलिए वो क्या करते हैं, ही ट्राई टू साउंड सिवर। सिवर मीन्स स्ट्रिक्ट और हार्श। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या कहा, ही सेड दैट नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज he is going to be really ill, okay. So he was very strict, he was very harsh, and he said कि अगर आपने अभी भी इसके फूड को कट नहीं किया, राइट, जितनी कैलोरीज ये खा रहा है, अगर इसकी कैलोरीज कम नहीं हुई, अगर इसका कैलोरीज इनटेक कम नहीं हुआ, एंड अगर इसने ज़्यादा एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किया, देन दिस इज श्योर दैट ही विल बी वेरी इल, ओके। इसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा कैलोरीज और उस पर से एक्सरसाइज ना करना, दिस इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। नेक्स्ट ही सेड दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझसे केक मांग रहा है, चॉकलेट्स मांग रहा है, एंड हाउ कैन आई रिफ्यूज, हाउ कैन आई डिनाई, देन द राइटर सेड दैट यू हैव टू हार्डन योर हार्ट, राइट। आपको अपने हार्ट को हार्ड करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट हिज हेल्थ, ओके, एंड यू हैव टू कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको फूड देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर हिज हेल्थ। Mrs. Pumphrey wrung her hands, okay. Hearing this, जो Mrs. Pumphrey थी, she wrung her hands. Her wrung means twist, okay. So she twisted her hand. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. So she is saying that, oh, I will. आपने जो कहा है, all the things I will do, right. I will keep him on a very strict diet. I will cut down all the sweet things from his diet, okay, and I will make him do a lot of exercise. Next she is saying that I am sure you are right, okay, because Mr. Harriet is a veterinary surgeon. तो वो कह रही हैं कि I know you have all the knowledge, all the experience, and I know that you are right, but it is so difficult, so very difficult. But she used to love her dog so much कि उसको इतना strict diet पे रखना और उसको food के लिए मना करना, वो कह रही हैं कि it is so difficult, it is so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. After saying this, she set off, वो वहाँ से चली जाती हैं. Her head was down along the road as if determined to put the new regime, and उनके जो facial expressions थे वो ऐसे लग रहे थे that वो बहुत ज़्यादा determined है, बहुत ज़्यादा firm है किस चीज़ के लिए, to start the new regime. Regime means system. जो ये new system है, क्या system कि अब उनके डॉग को, ट्रिकी जो डॉग है उनका, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना है, स्वीट थिंग्स नहीं देनी है, ज़्यादा एक्सरसाइज करवाना है. ये जो नया सिस्टम है, जो नया रिजिम है, इसको वो इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहती हैं, तुरंत वो स्टार्ट करना चाहती हैं, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट हिज हेल्थ इशूज़. और उनको लग रहा था कि हाँ शायद ये बात सच है, इतना ज़्यादा फूड क्वान्टिटी देना, इतनी सारी कैलोरीज देना ठीक नहीं है. सो वो नए सिस्टम को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहती थी. इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस देयर ऑन हर फेस.
I watched their progress with growing concern. Okay, so she was going along with her dog and the writer was there and he was watching about their progress with growing concern. Okay, Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Okay, next the writer is saying कि जो dog था Tricky, he was tottering. Tottering means shaking or we can say unsteady walk. Okay, so वो इतना fat हो चुका था, उसकी body इतनी huge हो चुकी थी that he was unable to walk properly. Right, वो कैसे चल रहा था, वो बहुत shake हो रहा था. Right, एक stable walk वो नहीं कर पा रहा था and he was wearing his tweed coat. Okay, जो यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, this dog is wearing this tweed coat. Right, जो dogs को पहनाते हैं इस तरह का coat, it is called a tweed coat. So उसने भी अपना tweed coat पहना हुआ था. He had a whole wardrobe of these coat. Okay, now narrator is adding that Tricky was having a whole wardrobe. Wardrobe means almirah, we can say cupboard. So he was having a whole cupboard full of these coats for the cold weather. Okay, so जब weather बहुत ज़्यादा cold हो जाया करता था at that time Mrs. Pumphrey, okay, she made her dog to wear these coats. Okay, so उस समय जो Mrs. Pumphrey थी वो अपने dog Tricky को ये कोट पहनाया करती थी. So उसके पास इतने सारे कोट थे that जो पूरी wardrobe थी वो उस कोट से भरी हुई थी और ये सभी कोट यूज़ हुआ करते थे कब, कोल्ड वेदर में. एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जब वेट डेज हुआ करते थे इट मीन जब रेनी सीजन हुआ करता था, सो उस समय पहनने के लिए ही वॉज हैविंग द रेन कोट. ओके, सो आफ्टर रीडिंग दिस वी कैन इमेजिन कि कितनी लग्जीरियस लाइफ थी उस डॉग की, ट्रिकी की. डेट्स वाई ये वर्ड यूज़ किए गए थे डेट ही वॉज सो पैम्पर्ड. ओके, और इसकी जो मिस्ट्रेस थी शी वॉज सो रिच, वो इतनी रिच भी थी और वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा लव किया करती थी, बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो किया करती थी. और ये भी उनके अफेक्शन शो करने का तरीका था दैट ही वॉज हैविंग सो मच ऑफ ट्वीड कोट्स दैट द होल wardrobe was full of his coats. Okay, he struggled on drooping in his harness. Okay, but now because of the fat he was unable to walk properly. That's why he was struggling. Okay, जब वो चल रहा था, चलने में भी उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे. एंड ही वॉज drooping in his harness. Harness here in the picture we can see this is the harness. Okay, जिसके द्वारा आप अपने पेट डॉग को इस तरह से आप अपने हाथ में उसको लेके चल सकते हो. एंड ही वॉज ड्रूपिंग. ड्रूपिंग मीन्स बैंड. ओके, सो ही वॉज बैंडिंग बिकॉज ऑफ द फैट. ओके, बिकॉज ऑफ द ह्यूज फैट. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. Okay, now writer is saying कि उस डॉग ट्रिकी को देखकर राइटर को ये बात पता चल गई थी कि इसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, बिकॉज वो इतना ओवर वेट हो चुका था, उसमें इतना ज़्यादा फैट हो रहा था कि उनको पता चल गया था कि अगर ये इसी तरह से उसको फूड देती रही और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है तो बहुत जल्दी मिसेस पम्फ्रे जो है वो उन्हें कॉल करने वाली हैं. कॉल क्यों करेंगी, बिकॉज वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, सो शी विल कॉल टू discuss about his health issues. Okay, the expected call came within a few days. और ये जो expected call थी, call expected क्यों थी, because writer was very sure कि ये call आने वाली है. Okay, so वो जो expected call थी वो सच में आ गई थी within a few days only. Mrs. Pumphrey was distraught, और वो call Mrs. Pumphrey ने की थी और बात करते समय Mrs. Pumphrey was very distraught. Distraught means extremely worried. Okay, so she was very worried. Why? Tricky would eat nothing, क्योंकि अब जो ट्रिकी था उसकी हेल्थ इश्यूज इतने डाउन हो चुके थे, उसकी हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी थी दैट ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ओके, और वो कुछ भी खा नहीं रहा था एंड रादर देन वो बहुत उसकी जो आपकी फेवरेट डिशेज थी, राइट, यानी ऐसी चीज़ जो उसकी फेवरेट हुआ करती थी, जो कि हमने पढ़ा था चॉकलेट्स थी, क्रीम केक्स थे, सो अपनी फेवरेट डिश भी वो नहीं खा रहा था, उसको भी वो रिफ्यूज़ कर रहा था. एंड बिसाइड्स ही वॉज हैविंग bouts of vomiting. Right, bouts means a short period. Okay, so after every short period of time he was having a lot of vomiting also. Okay, so उसकी health actually में बहुत down हो चुकी थी because of that overfeeding. Okay, he spent all his time lying on a rug
panting, okay, and all the time what was he doing? He was just lying on a rug. Here we can see in the picture, it's a kind of this carpet. So वो पूरे समय जो उसका रग था वो वहीं पर लेटा रहता था. Panting means out of breath, okay. So he was not able to breathe properly, okay, because of that fat, okay. वो इतना fat हो चुका था कि वो properly breathing भी नहीं कर पा रहा था. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything, okay. और वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था, उसको कुछ भी नहीं करना था, वो बस अपने रग पे अपने कारपेट पे लेटा रहना चाहता था. he didn't want to go for the walk और he didn't want to do anything, okay. किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं था, ना वो वॉक पे जाना चाहता था, ओके, ना वो अपना फेवरेट फूड, अपनी फेवरेट डिशेस खाना चाहता था, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, कुछ प्ले एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहता था, नथिंग. ही जस्ट वांटेड टू लाई डाउन ऑन हिज रग, ऑन हिज कारपेट, दैट्स ऑल, ओके. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी. व्हाई? बिकॉज जो उसकी मिस्ट्रेस थी, शी यूज्ड टू पैम्पर हिम अ लॉट एंड शी यूज्ड टू ओवरफीड हिम अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, वो इतना फैट हो चुका था, ह्यूजली फैट, ओके, दैट ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड ही वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, ओके. सो नाउ जो हमारे नरेटर हैं, जो वेटनरी सर्जन है, सो नाउ व्हाट विल ही डू, वो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और क्या जो ये डॉग है ट्रिकी, क्या ये फिर से रिकवरी कर पाता है, क्या इसकी हेल्थ जो है फिर से इम्प्रूव कर पाती है. वी विल कम टू नो व्हेन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.